anything, some basics of data science and the types of data science also. And after that, we cover the characteristics of data science and what are the difficulties to handling the data science. Okay, so we discussed about these and what are the demand of data science nowadays, and employee and employers are facing many challenges with the data science, because there is no trained employee or the trained or skilled person is available for data science in the market, and the employer is searching a trained or the skilled people for the data scientist or the data analyst. Okay, so these are some challenges. These are some integrating tools for the data science. We are already discussed about these, and these are some tools and providers companies. Okay, so these two things is here. One is validating the data and securing the data. That is more common challenges with the big data. Okay, and security is the major issue with the big data. So I think all of you daily heard about this security challenges, and daily आप लोग देख रहे होंगे नए तरीके के सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, और साइंटिस्ट जो है ना उसको रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज की डेट में हमें हर चीज किस पे चाहिए, अपने स्मार्टफोन पे चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम सारी चीजें अपने स्मार्टफोन पे देने की कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लूप होल होता है, जिसके थ्रू हमारा जो डेटा है वो इनसिक्योर होता है। और बहुत सारी कंपनीज भी ऐसी हैं जो कि अभी जो पॉलिसीज डिसाइड नहीं हुई है हमारे डेटा की प्राइवेसी को लेकर, उसका कहीं ना कहीं वो बेनिफिट उठाते हैं, और जो रूल्स बने हुए हैं उसको वॉलेट भी करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि उसको वो नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट या बाकी लोगों के पास भी अभी इतना अवेयरनेस नहीं है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, तो उससे रिलेटेड हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं और उस पर हम वर्क करें, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे डेटा साइंस के साथ में, क्योंकि the more valuable thing is data. Nowadays, data is more important, and so they are only concentrate on data. ठीक है, आपकी प्राइवेसी क्या हो रही है, आपका डेटा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसका क्या यूज हो रहा है, ठीक है ना। इससे अभी बहुत ज़्यादा मॉडरेशन नहीं है, बट इस पे कहीं ना कहीं हमें हार्म होता है, जिसके कारण अभी सिक्योरिटी चैलेंजेस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। So these two fields is very important nowadays, and the companies is also looking the trained people. One is the for security purpose, and another one is for your data handling or the data scientist. Okay. So big data architecture. Okay. So these are the architecture of big data. So this architecture is logically divided into three parts. What are the three parts? First one is how we can
collect, yeah, where from where we can collect the data. So the data source, and next one is how we can store that data, how we can store that data. So storing is the another thing, and after that, how we can prepare that data, how we can prepare that data. You can say how we can store and prepare the data, how we can store and prepare that data, and after preparation of data, how we can analyze and utilize that data. Okay, so the architecture is basically based on this. So these are the data sources, and after we can collect the data, we can store that data, we can store that data. अब डेटा को स्टोर करने के, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा कि हमारे पास पहले डेटा नहीं था, अब जब डेटा हमारे पास आ गया तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया कि हम डेटा को स्टोर कैसे करें। तो डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमने हार्डवेयर में चेंजेस चालू किए कि भाई हम हार्डवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, मतलब कि हमें अपने चीजों की जरूरत के हिसाब से, जैसे हम बर्तन किचन में रखेंगे, ठीक है, बेडरूम में बेडरूम से रिलेटेड चीजें रखेंगे, डाइनिंग रूम में डाइनिंग रूम से रिलेटेड, स्टोर रूम में स्टोर रूम से रिलेटेड। तो पहले हमने हार्डवेयर को स्ट्रक्चराइज किया। अब इसके बाद जब देख रहे हैं कि डेटा हमारा बहुत बढ़ रहा है, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हमने क्या किया, डेटा को स्ट्रक्चर करना चालू किया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी स्टोरिंग इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है ना, बट हाउ वी कैन प्रिपेयर दैट डेटा बिफोर स्टोरिंग, मतलब कि उसको कम से कम क्लस्टराइज तो करते हैं, उसको हम सेग्रीगेट तो कर लें, और सेग्रीगेशन के बाद फिर हम उस डेटा पे क्या करें, यूटिलाइज करने से पहले एनालाइज करें। क्या करें, एनालाइज करें, हाउ वी कैन एनालाइज दैट डेटा, एंड आफ्टर द एनालिसिस ऑफ दैट डेटा वी कैन यूज दैट डेटा इन अ पर्टिकुलर पर्पस। Okay, clear? First one is the data source. So identified the data generation sources, ठीक है ना। सबसे पहले हमें डेटा जनरेशन सोर्सेस को आइडेंटिफाइड करना होगा, और आइडेंटिफाइड करने के बाद फिर हम उन डेटा सोर्सेस को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ऑल बिग डेटा सोल्यूशन स्टार्ट विथ वन और मोर डेटा सोर्सेस, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से हम डेटा ले सकते हैं, इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और कितने टाइप के डेटा जनरेट होते हैं इसके बारे में भी। अब यहाँ पर एक चीज और वहाँ पर आई थी, रियल टाइम डेटा सोर्सेस सच एज IoT डिवाइसेस, ठीक है ना। आज की डेट में आप देखें ना, रियल टाइम डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं कंपनीज, रियल टाइम डेटा, क्योंकि आज की डेट में एक नेगेटिव कमेंट्स अगर आपने कहीं पर भी डाला है, ठीक है ना, तो वो आपके 99 पॉजिटिव कमेंट्स को भी क्या कर सकता है, जीरो कर सकता है। तो कंपनीज जो जैसे ओला हो गए, उबर हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है ना, PVR सिनेमाज हो गए, और बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो डायरेक्टली दे आर डीलिंग विद द कस्टमर्स, सो दे आर वेरी मच aware about their positive brands and positive comments and negative comments, ठीक है। तो वो अपने हर एक कमेंट्स को हर एक मोमेंट में हर एक टाइम पर जो है ना, वो क्या करते हैं, उसको फाइंड करते हैं, और इवन दो अगर कुछ भी होता है तो तुरंत वहीं के वहीं जो है ना रिजॉल्व करते हैं, कस्टमर केयर को सेंड किया जाता है, और आपको कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करेंगे या कुछ प्रोवाइड करेंगे, बट वो जो है ना उसको तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक रियल टाइम सिनेरियो जो एनालिसिस चल रही है उसके बारे में हो गया। अभी यहाँ पर जैसे है कि IoT डिवाइसेस जो है वो रियल टाइम डेटा सोर्स को जनरेट करते हैं। आज की डेट में बहुत सारी जगह पे जो है ना ऑटोमेटेड सिस्टम लग गए हैं, ठीक है ना। तो उन ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू भी हम क्या करते हैं, हमारा डेटा जनरेट होता है बहुत सारा, ठीक है ना। और डेटा इंजेक्शन, ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, दिस इज द फर्स्ट लेयर फॉर विच द जर्नी ऑफ बिग डेटा अराइविंग फ्रॉम न्यूमरस सोर्स। कई सारे सोर्सेस से हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। And this layer is basically for the categorize the different category of data। ठीक है ना, बहुत सारे टाइप के तो जो हमारे पास डेटा आते हैं उनको ये क्या करने का काम करते हैं, कैटेगराइज करने का काम करते हैं। ठीक है ना। And the primary goal of this layer is to furnish the trouble-free transaction of the data। trouble-free transaction means ये बहुत सारी जो अनवांटेड एंड अनइथिकल डेटा होता है या अनयूज्ड डेटा होता है, उसको ये क्या कर देते हैं, पहले से ही फिल्टर आउट कर देते हैं। सो दिस इज द मेन goal of this data ingestion layer। Then analysis layer। analysis layer, that is more important nowadays। Okay, so the only goal of companies are employing big data is to gain insight from it and thus make data driven decision। ठीक है, मतलब कि हम जो भी हमारे पास डेटा आया है उसके बेसिस पे हम क्या कर पाए, कुछ डिसीजन ले पाए, कुछ उसका यूज कर पाए। सो वी कैन परफॉर्म दैट एनालिसिस ऑन दैट डेटा। ठीक है, so analyzing big data, the most important layer in the big data architecture is the analysis layer। Okay, this analysis layer with the storage layer to given the valuable insights, and the architecture requires the multiple tool to analyze the big data। ठीक है, अब इस बिग